Hello guys, welcome to our YouTube channel Rawatpura Sarkar Expert Lecture Series. Myself Shubham Chaurasia, working as Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, RE, Jhansi. So it is a very reputed college in our Jhansi as well as Bundelkhand region. So without wasting your much time, we would like to start our today's topic is introduction to pharmacology. Pharmacology is a word which is made up of two terms. First of all, pharmacon and another one is logos. Pharmacon means a drug. Logos means to study, such as pharmacology is a collective term which we can say that the detailed study about drug is called as pharmacology. Pharmacology having their two sub branches are also known as pharmacodynamics and another one is pharmacokinetics. So if we just talk about what is pharmacology, so pharmacology is a branch of medical science which deals with study of the drug. This is the definition of your pharmacology. While another one, pharmacology is a collective term which gives detailed note about the drug. It having their two subcategories called as pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacodynamics means to say the what does drug do to the body, while pharmacokinetic, what does body do, what does body do in answer to drug, what does body do to the drug. What is pharmacokinetics? So pharmacokinetic is a branch of pharmacology which deals with the drug respond on your body system, while pharmacokinetic is also a branch of pharmacology which deals with the body's response to the drug, collectively termed as ADME. Here we would like to focus that what is drug. What is drug? So first of all, drug is a chemical moiety or a agent which is usually used for आपका जो भी ड्रग है वो क्या क्या काम करने वाला है, किस लिए यूज करने वाला है। ये आपका सबसे पहले है डायग्नोसिस. Drug is usually used या used for diagnosis, treatment and your prevention. ठीक. Drug is a chemical moiety which is usually used for diagnosis, treatment or prevention of a
disease or disorder. So here are various terms such like what is diagnosis, what is treatment, what is prevention, or is there any difference between disease or the disorder. What is diagnosis? Diagnosis means to identify what kind of disease or the infection is occurring in your body. So it is a scanning या एनालिसिस. ठीक है, डायग्नोसिस मतलब पता करना कि आप किसी तरीके की बीमारी, किसी तरीके के इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं या नहीं. सो सच लाइक योर ब्लड टेस्टिंग, ब्लड सीरम टेस्टिंग, यूरिन, है ना. ब्लड सीरम टेस्टिंग में आपका है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीवीसी, यूरिन एनालिसिस. अब मैं पहले बात करता हूं भैया कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिसीजेज और दी डिसऑर्डर्स. बेसिकली बोथ आर दी सेम, आर collectively termed as impaired function of your body system, are called as diseases or disorder. What diseases may be caused by external factor. ठीक, external factor such like microbial agents, sunlight, आपका रेडिएशन. ठीक, ये आपके बॉडी में कोई सा भी आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं तो वो एज अ टर्म होगा आपका डिसीज. वाइल अगर बात करी जाए व्हाट इज डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर कॉज्ड बाय देयर इंटरनल फैक्टर सच लाइक डिसलोकेशन ऑफ योर नी, डिसलोकेशन ऑफ योर जॉइंट आर कॉल्ड एज disorders. मतलब impaired function of your organ system are called as disorder caused by internal factors. ठीक है, ये तो बात की आपके डिसीजेस और डिसऑर्डर की. तो हमने पता लगा लिया कि साहब डिसीजेस को तो पता लगा लेंगे हम कंप्लीट ब्लड काउंट से, यूरिन काउंट से, ठीक है, सीरम काउंट से. ये तो बात रही आपकी डिसीजेस का. अब हाउ विल यू आइडेंटिफाई डिसऑर्डर्स? सो देयर आर सेवियर सच लाइक एक्सरेज, स्कैनिंग, एमआरआई. ये आपके क्या पता करेंगे कि यस इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल ज्वाइंट और द इम्पेयर्ड ज्वाइंट. ठीक है, बात आती है ट्रीटमेंट की. यू हैव डायग्नोस्ड दैट पर्टिकुलर वन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ डिसीज, देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर वन. सो ट्रीटमेंट कि आप उस बीमारी के अगेंस्ट में कौन सा दवा यूज करने वाले हैं. सच लाइक इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोबियल एजेंट सच लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस. ठीक है, नॉर्मली. ठीक, तो उनके अगेंस्ट में आपने क्या लिए? एंटी माइक्रोबियल एजेंट. एंटोमाइक्रोबियल एजेंट्स क्या काम करने वाले हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हैं या फिर उसे डायरेक्टली किल करने वाले हैं. दैट इज द ट्रीटमेंट. ठीक, अब बात करी जाए व्हाट इज प्रिवेंशन. तो प्रिवेंशन मींस प्रीवेंशन, मतलब डिसीज होने के पहले आपने जो पॉजिटिव सिम्टम्स लिए हैं या पॉजिटिव मेजर्स लिए हैं, प्रिकॉशंस ली हैं, वो क्या है आपके प्रिवेंशन. सच लाइक वैक्सीन्स. वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिसीजेस यू टेक. मतलब बचपन में ही हमें वैक्सीन्स, बहुत सारे टीकाकरण, ठीक है, बचपन में भी हमें बहुत सारी डिसीजेस से लड़ने की इम्यूनिटी हमारे शरीर में पैदा कर दी जाती है, जबकि उनके पहले हम किसी भी माइक्रोबियल या किसी भी डिसीज से सफर किए नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो बात थी भैया कि व्हाट इज pharmacology, kinetics, dynamics and their drug. While is there any difference between drug or medicine? Yes, there is a slight difference. Drug is a chemical agent which is raw material. Drug कैसा है आपका? Raw material है. While medicine क्या है? Medicine is a prepared dose is form. ठीक है, मेडिसिन क्या है?
ड्रग को आपने वेरियस प्रोसेसेस के दौरान मेडिसिन में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आपका मेडिसिन क्या हो गया, द फॉर्म ऑफ ड्रग ऑफ in which it is present in market are called as dosage form such like tablet, capsule, syrups और etc। ठीक, यहाँ पे तो ये तो बात थी अपने फार्माकोलॉजी की। अब मैं बात करता हूं आपके दो सब ब्रांचेस की। ठीक, तो भाई साहब ये दो सब ब्रांचेस क्या होने वाले हैं आपके, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ठीक, तो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स और व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स इज अ, ठीक है, क्या है भाई ये डायनामिक्स जो भी है, को डायनामिक्स, ये क्या है, ड्रग्स रिस्पॉन्स ऑन योर बॉडी। ठीक, ये बॉडी भी हो सकता है या बॉडी का किसी पर्टिकुलर पार्ट पे भी हो सकता है। तो आपका डायनामिक्स क्या है, ड्रग ने आपके बॉडी पे क्या इंपैक्ट छोड़ा। तो यहां पे आपके दो ही हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, आपका एक हो सकता है डिजायरेबल और अनदर वन इज अनडिजायरेबल। Desirable effect are also called as pharmacological effect or already known as therapeutic effect. ठीक, these are the desirable responses और undesirable responses. Undesirable responses में आपके क्या क्या आ सकते हैं, undesirable responses में आपके आ सकते हैं आपके adverse effect, side effect और टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक, अगर बात करी जाए कि भैया डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स में कोई अंतर नहीं साहब, आपके जो डिजायरेबल इफेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, डिजायरेबल इफेक्ट्स क्या मतलब कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए, जिस पर्टिकुलर मोटो या जिस पर्टिकुलर एम से आपने जिस ड्रग का यूज किया हुआ है, आपको वही रिस्पॉन्स मिल रहा है। सच लाइक यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड यू आर यूजिंग अ टैबलेट विच रिड्यूसेस योर बॉडीज टेम्परेचर, this reduces your raised body temperature, so that it is a desirable or the pharmacological or therapeutic effect. While if it causes any other effect, ठीक, आपका ड्रग आपके रेस्ड बॉडी टेम्परेचर को तो कम कर रहा, बट इट मे कॉज जीआई इरिटेशन। ठीक, जीआई इरिटेशन मीन्स टू से उसने आपके बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर तो सही किया, बट उसने साथ ही साथ वॉमिटिंग भी कॉज करी। तो ये क्या है आपके साइड इफेक्ट्स। बात करी जाए एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे उसके, तो एडवर्स इफेक्ट में आपका वो ड्रग जिस पर्पस के लिए आपने लिया था वो तो सही है, बट किसी बॉडी पार्ट के किसी भी बॉडी पार्ट पे, ठीक है, आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट पे उस ड्रग ने कुछ अलग ही एक्शन दिया। सच लाइक लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस मीन्स टू से आपके लिवर को उसने डैमेज पहुंचाया, तो वो क्या रहेंगे आपके एडवर्स इफेक्ट। भाई अगर बात करी जाए क्या टॉक्सिक इफेक्ट की, ठीक, तो आपका ड्रग वो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, इट मे कॉज टॉक्सिसिटी सच लाइक योर फूड पॉइजनिंग और ईटीसी। ड्रग के अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो ड्रग क्या है, ड्रग डज नॉट impart any new function। ठीक, ड्रग अपने आप से कोई सा भी नया फंक्शन इंपार्ट नहीं करता है, ठीक है। ड्रग डज नॉट इंपार्ट एनी न्यू फंक्शन व्हाइल इट अल्टर, क्या काम करने वाला है, व्हाइल इट अल्टर the rate of
ongoing physiological reaction. ठीक है, आपका जो भी ड्रग रहने वाला है वो आपकी बॉडी पे कोई सा नया इम्पार्ट नहीं करने वाला है, बस वो क्या करने वाला है, वो आपका फिजियोलॉजिकल इम्पार्ट या जो आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहा है उसे अल्टर करने वाला है, उसकी इंटेंसिटी को अल्टर करने वाला है. सो दैट मीन्स इट इज डायनामिक्स. बात करी जाए आपके काइनेटिक्स की, ठीक है, तो फार्माको काइनेटिक्स. ठीक है, काइनेटिक्स क्या रहेंगे आपके कि अब यहां पे क्या आने वाला है कि अब ड्रग के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी ने क्या एक्शन दिया. व्हाट डज बॉडीज रिस्पॉन्स ऑन ड्रग या बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग. अब यहां पे आपका जो भी बॉडी का रिस्पॉन्स रहेगा कि उसने ड्रग के साथ में क्या किया, तो ये आपके चार टर्म्स रहने वाले हैं. ए डी एम ई. ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M stands for metabolism और E stands for excretion. What is absorption? So absorption is a phenomena or the rate and extent of amount reaches to your blood stream. मीन्स टू से अगर आपने कोई सा भी ड्रग आपके जीआईटी से लिया है तो वो आपका किस रेट और किस मात्रा में आपके ब्लड में पहुंच रहा. ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है आपका एब्जॉर्प्शन. अगर बात करी जाए डिस्ट्रीब्यूशन की तो इसे भाई कलेक्टिवली बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका ड्रग कितना प्रोटीन से बाइंड हो रहा है, कितना एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, है ना, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स, या कितना फैटी एसिड्स में या फैटी टिश्यूज में डिपॉजिट हो रहा है, किस ना ड्रग आपके किस ऑर्गन में किस पर्टिकुलर टिश्यू से बाइंड हो रहा है, वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और आपका जो ड्रग अब आपका एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, और कितना ड्रग आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके बाद में जितना अमाउंट बचा हुआ है रिमेन फ्री इन योर ब्लड or reaches to site of action are called as bioavailability. ठीक, मीन्स टू से आपका एब्जॉर्प्शन होके ड्रग ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद आपके वेरियस टिश्यूज और वेरियस ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जितना आपका ब्लड में फ्री बचा और वो कहाँ पहुंचा है, जहां पे उसे एक्शन देना था, मीन्स टू से साइट ऑफ एक्शन पे, वो क्या बोलेंगे अपन उसे बायो अवेलेबिलिटी. बात करी जाए मेटाबॉलिज्म की तो आपका जो एक्टिव फॉर्म है ड्रग का, ठीक है, इनएक्टिव बनाने के लिए उसे क्या किया जाता है, मेटाबोलाइज और बायो ट्रांसफॉर्म. ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, मेटाबॉलिज्म. लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, हर एक ड्रग आपका मेटाबॉलिज्म के बाद में इनएक्टिव नहीं होती है, बट सम ऑफ दिस ड्रग हैविंग देयर पोटेंट मेटाबोलाइट्स एज कंपेयर टू देयर एक्टिव, सच लाइक कोडीन. ठीक है, कोडीन क्या है भाई, कोडीन से एक्टिव फॉर्म मोर्फिन भी बन सकता है. और यहाँ पे बात करी जाए एक्सक्रीशन और इलिमिनेशन की, ठीक है, तो आपका एक्सक्रीट आउट करना मीन्स टू से आपके उसे पर्टिकुलर उस ड्रग के अमाउंट को चेंज्ड या अनचेंज्ड किसी भी फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, एक्सक्रीशन हो गया. ठीक है, व्हाइल उसे उसकी एक्टिव साइट से हटा देना, इलिमिनेशन हो गया. ठीक है, अगर आप कहने का मतलब है कि आपका जो ड्रग रिसेप्टर के साथ में बाइंड हुआ है उसे उसकी बाइंडिंग साइट से डिसलोकेट कर देना इलिमिनेशन है, व्हाइल उसे बॉडी से ही एक्सक्रीट आउट कर देना एक्सक्रीशन है. दिस इज ऑल अबाउट देयर ब्रांचेस and the pharmacology, and thanks for watching.
and like and subscribe our institutional channel for getting such videos from various faculties. Thank you.